اچھا ایسا ہے کہ خواتین سارا دن گھر کا کام کرتی ہیں اور سب چیزوں کی سروس کرتی ہیں، اپنی سروس نہیں کرتے، اپنی خدمت نہیں کرتے۔ وہ اپنی خدمت یہ ہے کہ اپنے پاؤں، تلوے، پنڈلیوں کو تیل کی مالش کریں یا کرائیں۔ خادمہ ہے گھر میں، خود کر لیں، ناک میں تیل لگائیں۔ سائنس کہتی ہے ناک گیٹ وے ہے۔ جب موبائل نہیں آیا تھا تو ہم بیرون ملک کی کال ملانے کے لیے گیٹ وے کو کہتے تھے کہ ہم نے اس ملک کا کوڈ ہے، یہ نمبر ہے، ہمیں اس کو کال ملا دیں۔ گیٹ وے یہی ناک تھی جو اماں کی پیٹ میں اسی کے ذریعے غذا ملی تھی، اسی کو ہم بھول گئے، اس کو آئلی نہیں کرتے۔ میرے پاس اس کی سائنس کی بہت بڑی ریسرچ ہے، بہت زیادہ تحقیق ہے۔ تو خواتین اپنے آپ کو وقت نہیں دیتی۔ دوسرا، نتنوں میں تیل نہیں لگاتی، یہ بھی میرے پاس بھی اس کی سائنسی ریسرچ ہے۔ دیکھیے اس وقت کرونا وائرس جتنی بھی بیماری ہیں یہ یہیں سے جا رہی ہیں۔ یقین جانیے جو بندہ زیتون کا تیل 2-4 قطرے صبح شام منہ میں ڈال کے بس اس کو ایسے منہ میں لپیٹ لے اور 2-4 قطرے صبح شام ناک میں ڈال لے، میں پچھلے مارچ سے بتا رہا ہوں، مارچ 2020 سے بتا رہا ہوں یہی ٹوٹکا، اور آج تک جس کو بتایا ہے اس کو کچھ نہیں ہوا۔ ایک تو یہ کریں۔ دوسرا یہ ہے یا قویو یا قادرو، یا قویو یا قادرو، اس کی ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اور آخری چیز، جو چاہتا ہے جتنا بھی کام کروں، نہ پٹھے دکھیں نہ اعصاب دکھیں، خواتین ہیں یا دفتری کام کرنے والے حضرات ہیں، جو یہ چاہتے ہیں وہ تسبیحات فاطمہ پڑھیں، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یہ عمل پوری دنیا کی ٹینشن کے ماروں، دکھوں کے ماروں، اعصاب اور کمر کے کھچاؤں کے ہاروں کے لیے بہت باکمال عمل ہے۔ تسبیحات فاطمہ یہ آپ کریں، انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ کرم ہو جائے گا۔ حکیم صاحب سے ایک اور بات مجھے پوچھنی تھی، جی بچے پڑھائی میں دلچسپی ہے، اس کے لیے مجھے ضرور کچھ بتا دیجیے۔ میں ابھی آپ سے پہلے ابھی پروگرام آپ سن رہی ہوں گی، وہ وظیفہ اٹلی سے ایک خاتون، انہوں نے میرا وظیفہ مجھے لوٹایا ہے۔ آپ وہی وظیفہ یا ممیت ہو یا قابض ہو یا مانع ہو یا صبور ہو یا حفیظ ہو، ہر نماز کے بعد سخت تصور کر کے پڑھیں۔ ایسے بچے جو ہے خود شیطان بن چکے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ بچوں کے لیے اور گھر کے لیے اور میاں بیوی کے جھگڑوں کے لیے بھی یہ بہت زبردست وظیفہ ہے، اور نظر بد کے لیے، جادو کے لیے بھی لاجواب چیز ہے۔ تو آپ کی میں کال بند کر دوں؟ بہت شکریہ جی پلیز۔ آج ایک تحفہ اور دینا چاہوں گا جس پہ آپ بہت خوش ہوں گے اور آپ کو بہت نفع ملے گا۔ ایک شخص کہنے لگے کہ میں میدان عرفات میں تھا، اور میدان عرفات میں میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو ایک درویش کے ارد گرد بیٹھے ان سے باتیں کر رہے ہیں، ان کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ میں بھی آمین کہنے لگا، بہت دیر تک دعا ہوتی رہی، میں بھی تو آمین کہتا رہا۔ جب دعا ختم ہوئی میں نے ان سے پوچھا یہ ہستی کون ہے؟ کہا یہ نواسہ رسول حضرت امام حسن ہے۔ میں ان سے لپٹ گیا، میں رویا کہ میں نے ساری زندگی ایک ایک دونے ایک ایک اوقیہ اور ایک ایک پیسہ جمع کر کے حج کا سامان بنایا، حج کے اسباب بنائے۔ کوئی عطا فرما دیں، آج کوئی عطا فرما دیں کہ میرے مشکیزیں بھر جائیں، میرے خچر بھر جائیں، میری اونٹنیاں بھر جائیں، بس مشکیزیں بھر جائیں، میرے خچر بھر جائیں، میری اونٹنیاں بھر جائیں۔ میں نے ان کے سامنے عرض کیا تو شیخ نے فرمایا اچھا دیکھ، میرا وہ خیمہ ہے، تھوڑی ہی دیر کے بعد آنا، جب مجمع ہٹ جائے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ میں نے حضرت کے خیمے کو دیکھ لیا، ہٹ کے بیٹھ گیا، اس انتظار میں وہ تھوڑی دیر کب گزرے گی، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ لوگ ہٹنا شروع ہوئے۔ حضرت اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ ظہر کی نماز ہو چکی تھی، نماز پڑھی تھی، حضرت اندر تشریف لے گئے۔ میں انتظار میں بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر ہوئی، حضرت ساتھ والے خیمے میں تشریف لائے۔ ایک خادم آیا کہ شہزادہ اہل بیت آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو میں سمجھ گیا اس خیمے میں مستورات ہیں اور اس خیمے میں آپ اکیلے ہیں۔ میں گیا،
बहुत खुश हुए। मुझसे पूछा कहां से आए? कहा मैं दरियाए दजला के किनारे फलां बस्ती में रहता हूँ, दूर से आया हूँ, पहली दफा हज पे आया हूँ। आपकी जियारत का शौक था, बहुत जज्बा था, सारी उम्र दुआएं मांगता रहा आपकी जियारत, कि किसी तरह आपकी जियारत हो जाए। आपने फरमाया क्या चाहता है? फरमाया मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मेरी सारी जरूरतें पूरी कर दे, मेरे मशकीज़ें भर जाएं, मेरे खच्चर भर जाएं, मेरी ऊँटनियां भर जाएं, मेरा घर भर जाए, मुझे कोई कमी ना हो। और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे 19 नस्लों का रिस्क मांगना चाहता हूँ। तो कहा मुझसे इमाम हसन ने फरमाया 19 नस्लें तुझे क्यों याद आई? कहा मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कहा कि जो बिस्मिल्लाह है उसकी निस्बत 19 के साथ है, बिस्मिल्लाह, और जहां बिस्मिल्लाह होती है वहां बरकत होती है। मुझे 19 नस्लों का रिस्क चाहिए, 19 नस्लों का माल चाहिए, 19 नस्लों के लिए मुझे नेमतें चाहिए। और फरमाया और क्या मांगता? कहा मैं ये मांगता हूँ अगर मैं किसी गार में बैठूं तो वहां रिस्क मिले, किसी दरख्त के नीचे बैठूं तो रोजी मिले, किसी पहाड़ को हाथ लगाऊं सोने का बन जाए, किसी मिट्टी को हाथ लगाऊं तो हीरा बन जाए। मैं ये मांगता हूं मैं जिसके लिए दुआ कर दूं उसका काम हो जाए। कहा मेरे जज्बे को पढ़ते हुए शेख ने फरमाया और क्या मांगता है? सखी तो और देना चाहता है, मोहम्मद आले मोहम्मद से बढ़ के कौन सखी होगा? कहा कि आपने फरमाया और क्या मांगता है? कहा मैं ये मांगता हूं कि मैं मुस्तजाबुद दावत बन जाऊं, जिसके लिए दुआ मांगू दुआ पूरी हो, अपने लिए मांगू पूरी हो। मैं और क्या मांगता है? कहा मैं ये मांगता हूं बादशाह के पास जाऊं तो बादशाह मसनद और तख्त छोड़ के मुझे तख्त पे बिठाए। तो शेख हंस पड़े, फरमाया तू खुद बादशाह बनना चाहता है? कहा बना देंगे तो मैं इनकार नहीं करूंगा। तो आपने फरमाया तो मैंने तो खुद बादशाह छोड़ी है। इमाम हसन ने फरमाया मैंने तो खुद बादशाह छोड़ी है। और बहुत बड़ा इसहार था उनका, बहुत बड़ी अजमत थी कि उन्होंने तख्त छोड़ दिया मुसलमानों की खून रेजी की वजह से। कहा नहीं मैं तख्त को छोड़ देता हूं। क्यों? हमारे घर में नबूवत आई है, बादशाहत नहीं आई। आपने फरमाया अच्छा ऐसा है, जब असर ढल जाए फिर मेरे खेमे के साथ आके बैठ जाना। असर ढल जाए? क्यों? फरमाया जब असर ढल जाती है तो उस वक्त एक खास घड़ी होती है, उस घड़ी में जो अता किया जाए वो कबूल होता है, जो मांगा जाए वो मिल जाता है, जो असर अगर हो जाए। तो कहा मैं असर का इंतजार करने लगा। तो असर के बाद मुझे बुलाया, फरमाया डूबती असर थी, हजरत इमाम हसन ने मुझे बुलाया और मुझे बुला के फरमाया ऐसा कर अपने जैसे दुखियारे 11 और ले आ और जल्दी ले आ। कहा कि मेरे काफले में बहुत से लोग थे, हमारा सैकड़ों का काफला था, आया था, बहुत से लोग थे, उन सबको मैं ले गया 11 अफराद को। उन सबको कहा कि तुम भी कहना कि हमें जरूरत है, और उनको जरूरत भी थी। ये सारे 11 हजरात सामने बिठाए और मैं 12वां हो गया। और सब 11 से कहे यहां बैठे हो ना तुम अरफात के मैदान में, अरफात के मैदान की ढेरियां बना लो, मिट्टी के पहाड़ बना लो, ढेरियां बना लो। उन सब ने बना लिए। फरमाया इस पे हाथ रखो, और हाथ रखने के बाद कहा फरमाया जो मैं विर्द पढ़ता जाऊं तुम पढ़ते जाना, जो पढ़ता जाऊं पढ़ते जाना। और उसके बाद पढ़वाया और कहा बहुत देर तक पढ़वाते रहे पढ़वाते रहे पढ़वाते रहे। और उसके बाद फरमाया इन हाथों को झाड़ो और जाओ, जो चीज आज के बाद मांगोगे वो मिलेगा। और कहा कि अब अगर इसी जो मिट्टी की ढेरी है इसी के बारे में भी मांगोगे तो अल्लाह इस रेत को सोने की रेत बना देगा। कहा कि मुझे तो यकीन था, हम में से एक बंदे ने वही लफ्ज पढ़ा और पढ़ने के बाद देखा तो उसकी मिट्टी की ढेरी सोने की ढेरी, सोने की रेत बन गई थी। लेकिन कहा मैंने नहीं किया। तो हजरत ने मेरे अमल पे खुशी का इजहार फरमाया, हजरत इमाम हसन ने, और एक लफ्ज फरमाया, फरमाया जा इसका हाथ सोने का है, तेरा दिल और जुबान है, तो जिसके लिए सोना कहेगा उसकी तकदीरें बदल जाएंगी। ये एक रिवायत है, लंबी रिवायत को मैंने मुख्तसर आपकी खिदमत में खुलासा अर्ज किया। नहीं, सदियों पुराने उलमा, बुजुर्ग, औलिया, सालिहीन ने इस अमल को फिर किया और अगलों को बताया, फिर उन्होंने औरों को बताया, फिर औरों ने औरों को बताया। फिर जो इस अमल की तासीर खुली, इस अमल की तासीर का करीब करीब एक वाकया सुनाता हूं। वाली अफगानिस्तान थे अमीर हबीबुल्लाह खान, अमानुल्लाह थे, हबीबुल्लाह थे, अफगानिस्तान के बादशाह थे। वो जब भी किसी सफर में तशरीफ ले जाते थे एक बंदे को साथ रखते थे। वो बंदा इस दुआ का आमिल था, जो अभी दुआ हम पढ़ने लगे हैं इसका आमिल था। और बंदा क्या करता था, वो 3 घोड़ों और काफलों के साथ आगे चलता था
आगे चलने से मुराद ये होता था अगर वो चल रहा है तो आगे रास्ता बेखतर भी है, मौसम भी ठीक है, हालात भी बेहतर हैं। हत्ता कि अगर दुश्मनों के काफिले में भी वो शख्स जाके बैठ जाता था तो बड़े बड़े फातिहीन जब हमला करने आते थे उन फातिहीन की फतह भी रुक जाती थी। कहा कि जब तक वो बंदा रहा बादशाह अफगानिस्तान के साथ, कोई फातेह, कोई दुश्मन, कोई हासिद और मुख्तलिफ जगहों से शोरशें, बगावतें करने वाले सब दोस्त बन जाते थे और बादशाह के हर मकसद हासिल होता था, हर मंजिल मिलती थी, हर मुश्किल हल होती थी और बादशाह इज्जतों के ताज पहनता था। ये वो इस दुआ का आमिल था, वो इस दुआ का आमिल था। खुरासान के एक बुजुर्ग थे जो उस बुजुर्ग के साथ रहे, उन्होंने उनको ये दुआ दी, उन्होंने ये तफसीरी वाकया लिखा वाली अफगानिस्तान का, बादशाह अफगानिस्तान का लिखा कि उनके इस वाकये की बरकत से मुझे ये दुआ मिली है। और फिर फरमाया मैं ये दुआ पत्थर हो, लकड़ी हो, गार हो, समंदर हो, दरिया हो, कायनात की कोई नामुमकिन हो, मैंने ये मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से मिली इस दुआ को जब भी पढ़ा है मैं हैरत अंगेज तौर पे हैरान हुआ हूं और मेरी जिंदगी में हैरत के दरवाजे खुल गए हैं। मैं चाहता हूं इसे हम पढ़ लें और ये मोती अपने अंदर ले लें और ये मोती अपने अंदर समो लें और इस मोती का फैज, इसकी बरकत और इसकी खैर पाले। इसी मोती की निस्बत से दुआ भी करें। आप चाहते हैं ये मोती मिल जाए और आप भी वो बंदे बन जाए, वो इंसान की हैसियत आपका मकाम हो कि जो बादशाह अफगानिस्तान उसको बहुत इज्जत देता था, उनका वकार था और उनके साथ पास ये अमल था, उनके पास ये दुआ थी। वो कहते थे पत्थर बन जाए, गार बन जाए, पानी हो, समंदर हो, दरिया हो, नहर हो, कहीं कोई चीज हो, मुझे कोई खतर नहीं है क्योंकि मेरे पास ये है। और उन्होंने अपना वाकया सुनाया कि मैं इससे पहले एक और बादशाह की फौज में होता था। बादशाह की नजरों में कैसे आया, जरा ये वाकया भी सुन लेना, नहीं समझ आई। बादशाह की नजरों में कैसे आया, ये वाकया जरा गौर से सुनना, तवज्जो से सुनना, जागते हुए सुनना। इससे पहले एक और बादशाह के पास था, बगावत हो गई। ये बादशाह को लेके निकला खुफिया रास्ते में। वो जिस बादशाह ने बगावत की थी वो इस बादशाह को कत्ल करना चाहता था, कत्ल करना चाहता था, खुरासान के बादशाह को कत्ल करना चाहता था। ये बादशाह को लेके निकला पर मैं हम एक बद्दू देहाती के खेमे में जाके छुपे, हमें घोड़ों की आहट महसूस हुई। तो वो देहाती बद्दू कहने लगा ये बादशाह के घोड़े हैं और बादशाह के ही गुलाम हैं, फौजी हैं, लगता है किसी मफरूर को तलाश कर रहे हैं। कहा कि मैंने उसी वक्त ये दुआ पढ़ के खेमे पे दम की। वो लोग खेमे में आए और उस बद्दू से आके पूछने लगे यहाँ इस शक्ल के दो बंदे तो नहीं आए? तो कहा, बद्दू की जुबान बंद हो गई तो बद्दू यूं देखने लगा, कहा कुछ नहीं, उन्हें कुछ नजर नहीं आया, आगे निकल गए। कहा जब वो आगे निकले तो हमने कहा कि कहीं बद्दू हमारी मुखबरी ना कर दे। हम उस खेमे से निकलते निकलते एक जगह देखा पानी का चश्मा है, पानी के चश्मे के साथ कुछ बड़े बड़े दरख्तों का झुंड है। हमने पानी पिया, था कुछ नहीं, दरख्तों के झुंड में। थोड़ी ही देर हुई कि हमारे पास वो फिर आए और कहने लगे पांव तो उन्हीं के लगते हैं, यहाँ आए हैं। पहले दौर में पांव पहचानने वाले बड़े मशाक होते थे। ये जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खोजी थे, खोज लगाते लगाते कहां पहुंचे थे? गारे सौर में पहुंचे थे। सौर में वो पांव उठा के तो गए थे, तो कहा ये पांव हैं, ये पांव हैं। और पांव लगता है कि किसी के वही हैं। तो वो पांव कहा चलते चलते हमें आहट महसूस हुई, उन झाड़ियों की तरफ हमारे पांव थे। तो कहा मैंने ये दुआ पढ़ी और इस दुआ को पढ़ना शुरू कर दी और दिल की गहराइयों से पढ़ना शुरू कर दी। कहा हमारे करीब थे, उनकी सांसों की आवाजें हमें, उनकी शक्लें सामने थी, झाड़ियों को हटा रहे थे, हम उनको नजर नहीं आ रहे थे, जबकि मैं उन्हें देख रहा था। कहा नाकाम होकर चले गए। फिर एक और जगह हम गए तो एक बादशाह के यहाँ जाके हमने पनाह ली। तो बादशाह के यहाँ हम पहुंचे पूरा लश्कर लेकर कि हमारे कातिल मफरूर हैं, दुश्मन है हमारे हवाले किए। हत्ता के बादशाह को बेबस और मजबूर कर दिया और बादशाह ने कहा कि इनको पाबा जंजीर
जोलान जंजीरें डाल के इनके हवाले कर दो। कहा कि हमें जंजीरें डाली, हवाले किया, लेकिन जहां मैंने ये पढ़ा जंजीरें टूट गई और घोड़े बैठ गए, हम घोड़ों से उतर के कहीं चले गए, वो हमें ढूंढते रहे, हमें नजर ना आए। कहा पूरे सफर में जब भूख लगती थी ये पढ़ते थे, आज से 3 दस्तरखान उतरते थे, पूरे सफर में भूख लगती थे पढ़ते थे, या चश्मा मिलता था या अर्शों से मशकीजा आता था, पूरे सफर में पढ़ते थे, सवारियां मिलती थी, हिफाजत मिलता था, तहफ़्फ़ुज़ मिलता था, हत्ता कि इसके पढ़ने से वापस बादशाह को इक़्तिदार और हुकूमत मिली। जब वो बादशाह मर गया तो उसके बेटे ने, उसने कहा इस मेरे मोहसिन का ख्याल करना, और बेटे ने फिर पीरो मुर्शिद से भी ज्यादा मुझको इज्जत अता की। तैयार हैं फिर इस दुआ को लेने के लिए, इसकी बरकतें लेने के लिए तैयार हैं अल्लाह वालो, या बेकरार हैं? मुझे तो बेकरार चाहिए, तैयार नहीं चाहिए। अब उस दुआ को पहले मैं पढ़ूंगा, तवज्जो और ध्यान से उसको जज्ब करें, इसको सुने, इस पे तवज्जो दें, इस पे ध्यान दें, इसको याद करें, फिर इसको हम मुनाजात, दर्द और दुआ और जारियों की शक्ल में उसकी इसकी बरकतें मांगेंगे। क्या ख्याल है? एक बंदे ने पढ़ा, तासीर है, जिसको मजमा बैठ के पढ़े, जिसको मजमा बैठ के पढ़े, जिसको मुसाफिर बैठ के, जारियां करने वाले, रोने वाले, बिलखने वाले, सिसकने वाले, इल्तजाएं करने वाले, दुआ करने वाले, तो इसकी तासीर और ताकत का कोई अंदाजा हो सकता है? बोले या दाइमो या हय्यो, या फर्दो या वित्रो, या कदीमो या अहदो, या समदो, सल्ले अला सय्यदना मुहम्मदन व अला आली सय्यदना मुहम्मद। यह दुआ है। और एक बात बता दूं, याद ना भी कर सको, इस मजमे में जो दुआ पढ़ लोगे और आमीन कह लोगे, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह वालो, ये मजमा ऐसे है जैसे कोई आमिल बैठा है, सारे सामने बैठे हैं, आमिल ने अमल कराया, सबको आमिल बना दिया, सबको पगें पहनाई, अबाएं पहनाई, कहा जाओ मखलूक खुदा को जाके दम करो, दुआ करो, जाओ कामयाब। ये सूरत हाल ऐसी है, आज तो ऐसी सूरत हाल है। इसलिए अगर ये दुआ याद नहीं होती, इसको दर्द से, इसको गम से, इसको सोज और साज से डूब के पढ़ें, मेरे साथ पढ़ें, और अपनी मनाजात, अपनी परेशानियां, अपनी नाकामियां, अपनी नामुमकिन, फिर वही अल्फाज हैं, नामुमकिन मेरे लिए, आपके लिए, अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए कौन सी नामुमकिन है? या दाइमो या हय्यो, या फर्दो या वित्रो, या कदीमो या अहदो, या समदो, सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद व अला आली सय्यदना मुहम्मद। या दाइमो या हय्यो, या फर्दो या वित्रो, या कदीमो या अहदो, या समदो, सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलिही सय्यदना मुहम्मद। फिर तवज्जो डूब से पढ़ें, डूब के पढ़ें। अब हाथ उठा के दुआओं की कैफियत के साथ पढ़ें, और पहले पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद। या दाइमो या हय्यो, या दाइमो या हय्यो, या दाइमो या हय्यो, पढ़ें। या दाइमो या हय्यो, पढ़ें, पढ़ें, खुद पढ़ें, लिजाए से पढ़ें। आज आपने पढ़ना है, मैंने आमीन कहना है। या आमीन, आमीन, आमीन। या दाइमो या हय्यो, आमीन। या दाइमो या हय्यो, आमीन।
آمین آمین. یا اللہ، حضرت امام حسن علیہ